Ozempic the miracle drug. डाइट भूल जाओ, जिम हटाओ, Ozempic लगाओ, वेट घटाओ, 10 to 15% body weight gone with just one injection. But no one is asking the most basic question, क्या ये सबको लेना चाहिए? और क्या ये कुछ लोगों की जान बचा सकता है? इस वीडियो में मैं एक एक्सट्रीमली प्रेग्नेंट औरत आपको Ozempic के बारे में सब कुछ बताऊंगी। बट आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाय, मैं हूँ दिव्या, a biologist from Yale and CEO of Pinky Promise, an AI-led gynecology app built for women by women. Okay, so what is Ozempic? It's a brand name for the medicine semaglutide, जो ओरिजिनली बना था टाइप 2 डायबिटीज के लिए। ये बॉडी के एक हार्मोन को मिमिक करता है कॉल्ड GLP-1। हमारी बॉडीज ये हार्मोन नेचुरली रिलीज करती है, which basically helps to control blood sugar. बट डायबिटीज पेशेंट्स में GLP-1 प्रोड्यूस होने के बाद भी इंसुलिन रिलीज इज नॉट इनफ, जिसके वजह से ब्लड शुगर स्टेज हाई। GLP-1 के 3 फीचर्स है। नंबर 1, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, नंबर 2, भूख कम करना, और नंबर 3, आपके स्टमक को ज्यादा देर तक फुलफिल करवाना। तो इस हार्मोन की वजह से बिना रियलाइज किए आप कम खाने लगते हो। ओवर टाइम डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि Ozempic से टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स का शुगर तो कंट्रोल हो ही रहा है, बट साथ में वेट भी गिर रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चला कि Ozempic से 10 to 15% बॉडी वेट लॉस हो सकता है। That is when Ozempic was rebranded as Wegovy and officially obesity के लिए अप्रूव हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में इन्फ्लुएंसर आई, टिकटॉक क्रिएटर्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, IG इन्फ्लुएंसर्स, सबने Ozempic को बना दिया द स्किनी इंजेक्शन। इन्फ्लुएंसर्स ने इसे एक शॉर्टकट टू वेट लॉस की तरह पोजीशन किया, which led to the popularity of the drug. इस हाई डिमांड से सप्लाई कम पड़ने लगी, तो लोग Wegovy की जगह सीधा Ozempic ही लेने लग गए, which was originally intended for diabetes patients. इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेडिसिन की शॉर्टेज होने लग गए। एंड इस शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रीज लाइक UK पास्ड एन ऑर्डर इन 2024 कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज नहीं है उन्हें Ozempic प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। Here I want to talk about an uncomfortable truth. ये कहना आसान है कि लोग कितने लेजी हैं यार, डायबिटिक लोगों की दवाई पतले होने के लिए ले रहा है। But that's not true. For many people, weight loss is a traumatic experience because it is simply not easy. और इसके multiple reasons है, like hypothyroidism, hormonal imbalance, extreme cases of PCOS, depression, menopause. So sometimes when people are on medication for depression, उससे भी weight gain हो सकता है, which becomes very difficult to lose. For many people, losing weight is not just a physical challenge, it takes a really large mental toll. And in cases में obesity के लिए GLP-1 drug is prescribed and it's very useful to lose weight faster, which helps with many underlying conditions which are there because of the weight. Weight loss के लिए society से कितना प्रेशर है? कपड़े खरीदने जाओ तो लिमिटेड ऑप्शंस, बिगर साइज के लिए एक्स्ट्रा पैसे, जिम के लिए वर्कआउट आउटफिट्स तक में लिमिटेशंस। Imagine wanting to do something nice for your body and constantly feeling judged and being discouraged. ऐसे में gyms often become intimidating. Honestly, social circles में respect तक आपकी body size पे depend करता है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, कई लोगों ने अपने experience share किया है, including creator and actor Kusha Kapila. Let's face it guys, inclusivity यहाँ premium plan पे आती है, especially for women जिनके लिए slim होना preference नहीं, सोशल करेंसी बना गया है। और ये आज की बात नहीं है। For decades, the idea of femininity and beauty has been defined as petite and slim. Movie ads, magazines, hoardings, हर जगह representation के नाम पे आपको लक 28, कुड़ीदा 47, वेट कुड़ीदा ही मिलेगा। So it's not fair to judge people who want to be slim or want to rush the process. Does this mean I'm saying जा सिमरन जा, ले Ozempic, जी ले अपनी skinny जिंदगी? No. I'm saying understand why people want it. Understand what it can do for your body. जो benefits लोग Ozempic से देख रहे हैं, like better sugar control, better heart health, क्या वो Ozempic की वजह से है? Or is it because of the weight loss caused by Ozempic? Research suggests that the benefits are actually because of the weight loss regardless of the method. Ozempic might be a miracle drug for people who need it, but it comes with common side effects also, please remember, like nausea, vomiting, diarrhea, constipation. तो ये ड्रग आप बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना डॉक्टर कंसल्टेशंस के कंसिडर मत करना। हाय डॉक्टर यश। ओह,
Dr. Yash wants to talk to you. तो GLP-1 मेडिसिन जो है वो बाहर देश में अराउंड 20 साल से ज्यादा से अवेलेबल है। डायबिटीज के लिए ओरिजिनली उसको इस्तेमाल किया गया था एंड फिर बाद में पता चला था कि उससे वेट लॉस भी काफी अच्छा हो रहा है। उसके और भी काफी सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हम लोग को अभी देखने को मिल रहे हैं, जैसे हार्ट में उसका फंक्शन इंप्रूव करने का, ब्रेन में लोगों को भूलने की बीमारी कम करने का। एंड इंडिया में वो अभी जस्ट अवेलेबल हुई है, उसके साथ साथ में उसके जेनरिक वर्जन भी अवेलेबल हो गए। तो सस्ता होने के साथ साथ में लोगों के पास में एक्सेस बढ़ गया है। पर कुछ चीजें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि ये दवा बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना लेना चाहिए। और डॉक्टर्स कौन से? इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, इनके ओपिनियन के थ्रू ही आपको लेना चाहिए। अगर आप बिना ओपिनियन के लेते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। आपका शुगर बहुत ज्यादा कम हो सकता है, वेट लॉस करते करते आपका मसल लॉस भी एकदम बहुत ज्यादा हो सकता है, बोन्स कमजोर हो सकते हैं और उसके साथ साथ में गॉल ब्लैडर की परेशानियां भी हो सकती है। तो इसको ओपिनियन के साथ में ब्लड टेस्ट और फुल बॉडी चेकअप के बाद ही लें। अगर आपको पता चलता है कि आप इससे एलर्जिक है तो डॉक्टर को प्लीज आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि ये मेडिसिन को हम लोग बंद कर सके या फिर एडजस्ट कर सके। Absolutely, Dr. Yash. In fact, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 77 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से अफेक्टेड है एंड इंडियन women are actually susceptible to gain abdominal fat, which is also very hard to lose. This puts them at a higher risk of diabetes, heart attack, obesity, and many other lifelong conditions. GLP-1 is actually super helpful for such people. And ये obese population largely middle और lower middle income groups को belong करती है. And how much does Ozempic cost? 10,000 से 15,000 प्रति महीना. तो जिसको medically चाहिए वो Ozempic afford नहीं कर सकते. Quick economics lesson. The more expensive and popular a drug is, right, the higher the chances of fake versions being available in the black market. But एक must update दूँ. March 20, 2026 में Ozempic, जो branded drug है made by a company called Novo Nordisk, उसका patent expire हो गया है. What does this mean? It means that Indian pharma companies ने semi-glutide के affordable versions बनाना शुरू कर दिया है. Cost 11,000 से गिर के सीधा 1,500 to 3,000 per month हो गए हैं. Many more people will be able to afford the drug, expanding access beyond a niche urban elite. अब खुशखबरी सुन के लड्डू मत खा लेना. मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये ड्रग कौन ले सकता है. नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स एंड नंबर 2, क्लिनिकली ओबीस इंडिविजुअल्स बट अंडर द डॉक्टर्स सुपरविजन. क्लिनिकली ओबीस कौन होता है? जिनका BMI 30 से ऊपर होता है. इंडिया में आप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये ड्रग ले ही नहीं सकते हो क्योंकि इसके बेनिफिट्स तो बहुत है पर रिस्क भी है. अगर आप सिर्फ 5 से 7 किलो लूज करना चाहते हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में बिना डॉक्टर से बात किए Ozempic लेना कंसिडर कर रहे हो तो थांबा, दिस इज नॉट योर सोल्यूशन. एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से वंस यू स्टॉप टेकिंग GLP-1 यू कैन रीगेन द वेट दैट यू लॉस्ट. 1.5 से 2 साल में बॉडी ओरिजिनल वेट में आ सकती है, which means taking the drug as a short-term solution to weight loss is actually just really not an option at all. Don't look at this drug as a shortcut miracle drug, but as a drug that can kickstart a journey. Take the drug if you and your doctor think it will help you. If you have diabetes or you are obese, chances are आपके doctors आपको already इस drug के बारे में बता चुके हैं. If you don't have a doctor, then you can always chat with one on our app. If you have any more questions about Ozempic, comments में पूछो. हमारे पास हर चीज का साइंटिफिक सीधा जवाब है. Pinky promise.